Okay, students of class 11th, NCERT biology book, chapter 9, Biomolecules. The topic is enzyme. We started with the enzymes in the last class. Moving ahead, we will see how enzymes perform chemical reactions. How do they perform chemical reactions? Okay. So as you know, any chemical compound can undergo chemical reactions. Okay. Various types of chemical reactions. So you can say that there is a change here. Okay. Because in these chemical reactions, old bonds are, आवाज आ रही है मेरी? Old bonds are getting broken and new bonds are getting formed. Correct? So this is one of the changes that can occur to chemical compound. So these changes are basically the chemical changes that can happen to a chemical compound. What about the physical change? Physical change can also occur in the chemical compound. Okay. Basically, a physical change is a process. It is a physical process. यहाँ से हमारा मतलब यही है. Okay. And in that process, there is change in the state of matter. Means if ice is melting into water, it is a physical change. And if water is getting evaporated, it is again a physical change that has happened to the same chemical compound, that is H2O. So all these processes, physical processes, chemical processes, can bring upon the changes on that matter or that chemical compound. Okay. If you observe a chemical reaction, for example, might have seen, see, there is one example given in your NCERT book. The example is barium hydroxide
is reacting with H2SO4, giving rise to barium sulfate and water. Okay. So this is one type of chemical reaction. And this type of chemical reaction means what we are discussing is changes can happen to the chemical compound. One is physical, another is chemical. Under chemical changes, also there are two types of chemical reactions, inorganic and organic. I mean to say. So this is one type of chemical reaction because these compounds are inorganic. So inorganic chemical reaction. This is an example of. If you consider breaking down of starch or hydrolysis of starch, this is also a type of chemical reaction. Water will be required because hydroxyl functional group will be restored in the free glucose compound. Okay, ग्लूकोज कंडेंसेशन हुआ था, वाटर निकला था, अब अलग होगा तो वाटर लगेगा and it will give rise to free glucose residues. This is also a chemical reaction and this is an example of organic chemical reaction. Okay, because this compound starch is organic. Water is inorganic. तो यहाँ पर सभी वाटर सारे inorganic compounds हैं. But in this reaction, this starch is organic. This glucose is also organic. Okay. So in these reactions, what you are observing is basically the products are reacting. The old bonds present in the reactants are breaking down and the products are forming. So new bonds are getting formed here. So there must be a rate of reaction. A rate of reaction कहने का मतलब हुआ there must be a rate of disappearance of reactants. There must be a rate of appearance of products. Yes. तो अब आप गौर कीजिए, जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस मतलब इनिशियल अमाउंट कुछ फिक्स होगा, इनफाइनाइट तो है नहीं, कुछ फिक्स अमाउंट होंगे. ओके,
अब रिएक्शन स्टार्ट हुआ है तो ये अमाउंट धीरे धीरे घटेगा रिएक्टेंट्स का। जितना रिएक्टेंट्स घटेगा उतना ही प्रोडक्ट बढ़ेगा, क्योंकि यही परिवर्तित हो रहा है, कोई अलग से तो आ नहीं रहा है। तो दिस रेट ऑफ disappearance ऑफ reactants will be equal to rate of appearance of product, and this is the and this is the rate of reaction। ये सब क्या हो गया? रेट ऑफ रिएक्शन, यही है रिएक्शन रेट। चाहे ये कह लो, चाहे ये कह लो, चाहे ये कह, तीनों बात बराबर है। एंड इट इज एक्सप्रेस्ड एज, दिस रेट इज एक्सप्रेस्ड एज the amount of product formed per unit of time, delta P by delta T। So the rate of reaction is defined as product, okay, product formed per unit time. This is rate of reaction, and this can be expressed as this equation, this formula। इसी रेट ऑफ रिएक्शन को हम वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेलोसिटी। बट वेलोसिटी में एक एलिमेंट और है, डायरेक्शन का। तो जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो दैट मीन्स हम उस समय दिस वेलोसिटी इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन। ओके, when direction is specified, the rate of reaction will be called as the velocity of reaction। तो velocity of reaction में रेट का भी पता चल रहा है और डायरेक्शन का। ओके, रेट ऑफ रिएक्शन, अभी तक आप देख रहे हैं कौन कौन से फैक्टर इसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। द फैक्टर्स व्हिच कैन इन्फ्लुएंस रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स influencing reaction। Number one, will temperature have any effect on the rate of reaction? Yes, temperature will have an effect on the rate of reaction। If the temperature decreases, then for that reaction to happen, slow हो जाएगा। क्यों? तो amount of activation energy which is required that not will be fulfilled। हमने बताया था आपको पहले, हर रिएक्शन के होने में एक एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत है। पहले क्यों जरूरत है? क्योंकि बॉन्ड के टूटने में एनर्जी की आवश्यकता है, इसलिए इनिशियली हमको उसे एनर्जी देना पड़ता है, चाहे वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो चाहे एंडोथर्मिक रिएक्शन हो। पहले हमें उसे
एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट है टू स्टार्ट द रिएक्शन। अगर एक जो थर्मिक रिएक्शन है तो हमें एक बार एक्टिवेशन एनर्जी देने की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद हर सब्सिक्वेंट रिएक्शंस के लिए वो एक्टिवेशन एनर्जी पहले वाले रिएक्शन से जो रिलीज हुई एनर्जी है उसी से प्राप्त कर लेगा। लेकिन एंडोथर्मिक रिएक्शन में फॉर एवरी रिएक्शन वी नीड टू सप्लाई द एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ एनर्जी हमें देते रहना पड़ेगा फॉर दैट रिएक्शन टू हैपन। ओके, तो there will be effect of temperature on the rate of reaction. If we increase the temperature, the reaction rate will increase till a certain, अब बहुत ज्यादा एक्सीड कर देंगे टेम्परेचर तो reactants may react otherwise, they may break down themselves. So एक सीमा के अंदर टेम्परेचर से रिएक्शन रेट फास्ट होगा। जनरल रूल है कि रेट डबल हो जाता है या आधा हो जाता है हर 10 डिग्री टेम्परेचर चेंज में। इफ द रिएक्शन हैपनिंग एट 17 डिग्री सेंटीग्रेड at rate suppose P, then at 27 degrees centigrade the rate will may be around 2P, and 7 degree it will be half P. So for every 10 degree centigrade change in temperature, reaction rate may get doubled or half. यहाँ 10 डिग्री चेंज को लिख दो, डिग्री इंक्रीज और डिक्रीज in temperature reaction rate may get double or half, comma, respectively. For every 10 degree centigrade increase or decrease in temperature, reaction rate may get doubled or half, respectively. अभी डायरेक्शन का इस पर नहीं इफेक्ट, डायरेक्शन तो एक निश्चित है। ओके, जैसे बेरियम ऑक्साइड plus H2SO4 is giving rise to barium sulfate and 2H2O. ये हो गया इसका फॉरवर्ड डायरेक्शन। अंडर दैट कंडीशन, एक सपोज इस किसी कंडीशन में ये फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, कंडीशन क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पर? इन सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन, ओके, हमने बताया था ना इक्विलिब्रियम। और बैकवर्ड कब होगा? जब यह रिएक्शन इक्विलिब्रियम में पहुंचेगा, उसके बाद ये रिवर्स होने की कोशिश करेगा। ओके, तो इसका कंसंट्रेशन, फिर टेम्परेचर, प्रेशर, दीज आर द फैक्टर्स। अभी आ रहे हैं उस पर। टेम्परेचर वी हैव डिस्कस्ड, इधर डायरेक्शन, यस, ठीक है। ये फॉरवर्ड में हो रहा है तो फॉरवर्ड में भी आधा या डबल हो सकता है। अगर ये बैकवर्ड में हो रहा है तो वहां 10 डिग्री चेंज आधा या डबल हो सकता है। टेम्परेचर चेंज से सिर्फ फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन में चेंज नहीं आएगा, सिर्फ टेम्परेचर चेंज करने से। जिस भी डायरेक्शन में रिएक्शन हो रहा हो उसी में रेट जो है ऊपर नीचे होगा, इसका ये मतलब हुआ।
समझी? अब देखिए, other factors, those who can affect rate of reaction, concentration of reactants, concentration of products, pressure एंड सो ऑन। ये हो गए मोटा मोटी। अब आते हैं हम यहाँ से, क्योंकि टेम्परेचर से संबंध है आपका एंजाइमेटिक रिएक्शंस का काफी ज्यादा। ओके, ये फैक्टर्स जो है, प्रेशर, हर रिएक्शन जो है प्रेशर पर निर्भर करता है, लेकिन क्योंकि सब जगह अर्थ पर करीब करीब एक समान प्रेशर है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हमारे बॉडी में भी अंदर भी उसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इक्वल प्रेशर है। ओके, तो इसको हम इग्नोर कर सकते। तो अब बॉडी के अंदर कौन से फैक्टर्स इन रिएक्शंस को ज्यादा डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि बायोलॉजिकल रिएक्शन सारे कैटेलाइज्ड रिएक्शंस हैं। तो वहां पर आप जान रहे हैं एंजाइम्स की प्रॉपर्टी कि even if the concentration is very small, very little, the product will be formed. Even if the amount of glucose is very little in the cell, glycolysis will take place. Okay, बहुत कम उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत ही बाद, बहुत ही कम रिएक्टेंट बच जाएगा तो भी तो आएगा, यानी एकदम नेग्लिजिबल हो जाएगा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, तब भी नहीं आएगा, ऐसे समझ। यानी एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल भी है तो भी वो ग्लाइकोलाइसिस पाथवे में एंटर हो जाएगा। तो रिएक्टेंट्स, एंजाइम्स जो है इक्विलिब्रियम को बहुत ही आगे धकेल देते हैं। कल हमने बताया था आपको, वी आर इन द स्टेडी स्टेट बट इन नॉन इक्विलिब्रियम। तो यहीं से मतलब आया वी आर इन द डायनेमिक स्टेडी स्टेट। तो नॉन इक्विलिब्रियम है तो डायनेमिक है, नॉन इक्विलिब्रियम तो एंजाइम्स जो है इक्विलिब्रियम को एकदम पीछे पुश कर देते हैं। तो विदाउट एंजाइम इक्विलिब्रियम जल्दी अचीव हो जाता। तो रेट ऑफ द रिएक्शन वहां वैसे भी बहुत स्लो होगा, इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम इट विल बी वेरी 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 स्लो। ओके, और एंजाइम हम दिए तो चूंकि इक्विलिब्रियम उसका बहुत ही पुश हो गया, बहुत आगे चला गया, तो रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी पुल्ड, इट विल बी वेरी फास्ट। तो फिर कंसंट्रेशन से मतलब नहीं है इन द बायोलॉजिकल सिस्टम ज्यादा। उसका ये एक केमिकल रिएक्शन जो लैब कंडीशन में हो रहा है, लेबोरेटरी में, वो ये सारे फैक्टर हैं जो डिफाइन करें। ओके, किसी क्लोज्ड चैम्बर में हम प्रेशर कम कर दिए तो रिएक्शन का रेट कुछ हो जाएगा, वैक्यूम में कर दिए रिएक्शन का रेट कुछ हो जाएगा। ओके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर दिए रिएक्शन का रेट कुछ हो जाएगा, लेकिन हमारे पूरे बॉडी में तो यूनिफॉर्म प्रेशर है। और एंजाइम्स जो बायोकैटलिस्ट है उन पर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के कंसंट्रेशन का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो फर्क किसका पड़ रहा है? टेम्परेचर का, बहुत बड़ा फर्क। ओके, और टेम्परेचर भी हमारे बॉडी का यूनिफॉर्म है और एक कांस्टेंट फिगर है, अनलेस एंड अनटिल वी फॉल सिक, तो टेम्परेचर भी है। तो अब देखिए कि एंजाइम्स आर कैटलाइज्ड रिएक्शंस, तो द फैक्टर्स व्हिच विल greatly impact, have great impact on these biocatalyzed reactions. One of the major factor is temperature.
These enzymes perform catalyzed reactions in the biological system या बायोलॉजिकल सिस्टम नहीं भी लिखो, क्योंकि हम परखनली में भी एंजाइम डाल के कैटालाइज रिएक्शंस ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो डायरेक्ट लिखिए, एंजाइम्स परफॉर्म कैटालाइज रिएक्शंस वेयर reaction rates are vastly high. Okay? Tremendously high. As compared to the uncatalyzed reactions. That means the reaction rate is very reaction rate of the catalyzed reaction is very high compared to reaction rate of the uncatalyzed reaction. Okay? एक एग्जाम्पल से हम पहले भी डिस्कस किए थे आपके साथ कि हाउ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड इन आवर बॉडी, डिस्कस किए थे। हाउ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन आवर बॉडी, ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? ऑक्सीजन 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 कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? ऑक्सीजन ऑक्सीजन पूछ रहे हैं, नहीं पता? हीमोग्लोबिन का नाम सुनी हो? हाँ, क्या करता है हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, फिर ये ट्रांसपोर्ट होता है। CO2 is transported like this. CO2 can also bind to hemoglobin. नहीं पता है? This is how CO2 is transported. Okay? कुछ CO2 हीमोग्लोबिन के साथ भी होता है, लेकिन हीमोग्लोबिन का एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ ज्यादा है CO2 के कंपेरिजन में, इसलिए वो ऑक्सीजन के साथ पहले बाइंड करेगा। नहीं तो CO2 के साथ रहेगा एफिनिटी ज्यादा तो CO2 के साथ बाइंड किए रह जाएगा, फिर ऑक्सीजन कैसे रिप्लेस करेगा इसको? ओके, तो दिस इज द मैकेनिज्म। हीमोग्लोबिन इज हैविंग मोर एफिनिटी विद द ऑक्सीजन देन CO2, तो हीमोग्लोबिन पहले ऑक्सीजनेटेड हो जाता है पूरा, अगर बच गया तो CO2 बाइंड होता है।
तो मेजॉरिटी ऑफ द CO2 इज ट्रांसपोर्टेड लाइक दिस इन द ब्लड। ब्लड में वाटर है, उसके साथ CO2 reacts and it produces carbonic acid with the help of enzyme carbonic anhydrase. अगर कार्बोनिक हाइड्रेज नहीं हो तो यह रिएक्शन बहुत ही स्लो होगा। आप टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन करो, CO2 ऐड करो वाटर में, इसमें पानी डाल दो और एक पाइप से CO2 छोड़ो इस पानी में, पानी में बुलबुला निकलेगा। हाँ? CO2 प्योर CO2 हम इसमें छोड़ रहे हैं, क्या होगा? रिएक्शन होगा, CO2 और H2 होगा, लेकिन बहुत ही कम रिएक्शन होगा, कोई एंजाइम नहीं है? ऐसे ही पानी हम रख दे प्लेट में, हवा में CO2 है, कितना एसिड बन जाता है? बनता है क्या? ठीक, बहुत ही स्लो है रिएक्शन रेट, बट दिस हैपेंस इन आवर ब्लड वेरी क्विकली with the help of this enzyme carbonic anhydrase. Okay, so without this the rate would be like this. In the absence of carbonic anhydrase it will be very slow. आपके बुक में दिया है 200 molecules of H2CO3 will be formed in an hour. एक आवर में सिर्फ 200 मॉलिक्यूल, कितना कम हुआ? और एवोगाड्रो नंबर कितना था? 10⁻⁻23 था ना? नो 6 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻⁻23। अब H2CO3 का मोलिकुलर वेट निकाल लो, मान लो 2 प्लस 12 प्लस 16 ये हो गया आपका 60-62 के लगभग, यानी 62 ग्राम होगा। अगर हम H2CO3 प्योर H2CO3 ले तो इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, 10⁻23, 6 इंटू 10⁻20, और 200 मॉलिक्यूल है बस, तो कितना वजन हो जाएगा? 200 बटा, और 2 शून्य काट दिया, 21 हो गया, और 2 से 3, यानी 1/3 ऑफ 10⁻⁻21 ग्राम। कितना कम हुआ? तो रेट विल बी वेरी स्लो, इतना स्लो कि पता भी नहीं चलेगा। और अगर कैटलाइज रिएक्शन है तो the reaction will speed dramatically. If we add carbonic anhydrase taken from the cytoplasm, the speed will increase dramatically such that 6 lakh molecules being formed every second. Okay? एक सेकेंड में, तो 1 घंटा में कितना बन जाएगा? वहां पर आवर था तो इसको 3600 से गुना कर दिया, 36 × 6 कितना होगा? 6×18 और 6×6 = 36, 216, और ये हो गया 5, 2 7, और 2 ये भी तो है, 7 2 9 गुना 10⁻⁹ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे 1 घंटा, 2 बिलियन। ठीक, ये 2 सुना था ना, तो 10 7 हो गया 10⁻⁷, फिर 36 × 6 216,
216 में भी डेसिमल 2 यहाँ ले आए तो 7 2 9 यहाँ 2 बढ़ गए, क्या हो गया। सो आप फर्क देख लीजिए कहाँ, 200 गुना 10⁻² पर आवर अनकेटलाइज्ड, और एंड दिस वन इज 10⁹ पर आवर केटलाइज्ड। तो दोनों में कितना अंतर हो गया, कितना गुना का। इसको मान लो अगर 2 ही है तो ये 2 कट गया, और 2 और 9, 10⁷ टाइम्स, इतना गुना का अंतर पड़ गया। यानी केटलाइज रिएक्शन 10 मिलियन टाइम्स ज्यादा फास्ट है अनकेटलाइज्ड रिएक्शन से। समझी कैलकुलेशन। देखो लिखा भी बुक में, द एंजाइम हैज एक्सेलरेटेड द रिएक्शन रेट बाय अबाउट 10 मिलियन टाइम्स। हम इससे आगे अभी पढ़ रहे हैं, तो लिखा ही 10 मिलियन टाइम्स, द पावर ऑफ एंजाइम्स इज इनक्रेडिबल इंडीड। सोच लीजिए कितना ज्यादा बढ़ा दिया, 10 लाख गुना ज्यादा, इनक्रेडिबल है। सो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ टाइप्स ऑफ एंजाइम। So enzyme is basically doing this. Now you have understood. It is increasing it is accelerating the reaction rate tremendously. And I have explained you also that how enzymes are doing this. It is lowering the activation energy required to perform that reaction. Okay. So this brown graph is the uncatalyzed reaction, brown line. And if this reaction is catalyzed, this pink line is representing the catalyzed reaction. So here you are observing the lowering down of activation energy. And this lowering down of activation energy, the body temperature is enough, sufficient to supply this energy. थर्मल एनर्जी है ना, ये बॉडी हीट है, तो यह एक्टिवेशन एनर्जी बॉडी हीट से ही वह एंजाइम प्राप्त कर लेगा। इसीलिए एंजाइम जो है बॉडी हीट, जो हमारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, वो ऑप्टिमम टेम्परेचर है एंजाइम का भी। ओके, हैव यू अंडरस्टूड दिस? सो एंजाइम इज हाउ दे आर परफॉर्मिंग दिस chemical reactions. They are lowering, enzymes are lowering this is rate of reaction on the x-axis and potential energy on the y-axis. So enzymes are lowering down the activation energy required to reach the transition state system. ट्रांजिशन स्टेट वो स्टेट है जहां पर बॉन्ड्स अभी ब्रेक हो रहे हैं, कुछ ब्रेक हो गए, कुछ नहीं ब्रेक हुए हैं, कुछ फॉर्म हो गए हैं, कुछ नहीं फॉर्म हुए हैं। ओके,
तो ट्रांजिशन स्टेट, उस ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी स्टेट हाई हाई होती है क्योंकि वह स्टेबल नहीं है, तो तुरंत फिर विखंडित हो जाएगा इनटू प्रोडक्ट्स। तो उस ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचाने के लिए एनर्जी लगेगा बॉन्ड ब्रेक होने में, तो एनर्जी इज रिक्वायर्ड, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। सो दिस ट्रांजिशन स्टेट की एक्टिवेशन एनर्जी द एंजाइम इज लोअरिंग डाउन। ओके, सो only little requirement of activation energy is left then, and that is fulfilled by the body heat. Okay, तो ये हो गया। तो आप देख रहे हो हीट का असर है एंजाइम, तो एंजाइम मेटिक एक्टिविटी एक्टिविटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, टेम्परेचर, if you draw a graph, temperature versus rate of reaction in the presence of enzyme, catalyzed reaction, then you will observe a dumbbell curve. Like this. There will be a temperature which is best suited for its activity for that enzyme. At that temperature, the reaction rate will be the highest, will be the maximum. So that temperature is called optimum temperature. More than this temperature and less than this temperature, then enzymatic activity will be less. क्योंकि ज्यादा होगा टेम्परेचर तो क्या आप कहोगे इससे क्या फर्क पड़ता, एक्टिवेशन एनर्जी मान लो यहाँ कम मिल रहा था, लेकिन ज्यादा में क्या हो रहा है, क्यों कब कम हो गई एंजाइम एक्टिविटी? एंजाइम इस टेम्परेचर पर बेस्ट फंक्शन कर रहा है, उससे ज्यादा टेम्परेचर देने पर एंजाइम का स्ट्रक्चर लॉस हो गया, लॉस हो रहा है एंजाइम का स्ट्रक्चर, क्योंकि फॉर इट्स फंक्शन इस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर configuration including conformation is essential, necessary। और हम टेम्परेचर जब देंगे तो यह प्रोटीन डीनेचर कर जाएगा। ओके, इट विल स्टार्ट लूजिंग इट्स 3 डायमेंशनल बायोलॉजिकली फंक्शनल स्ट्रक्चर। तो एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाएगी, बहुत सारे एंजाइम के मॉलिक्यूल्स हो गए। अब इस टेम्परेचर पर कुछ एंजाइम्स डीनेचर हो गए, कुछ अभी डीनेचर नहीं हुए हैं, तो वो कर रहे हैं, तो एंजाइम एक्टिविटी कम है। और टेम्परेचर बढ़ गया, बहुत सारा एंजाइम डीनेचर हो गया, फंक्शन उसका बहुत कम हो गया। एक टेम्परेचर ऐसा आएगा सारा एंजाइम डीनेचर हो जाएंगे, फंक्शन इज गॉन। ओके, अब कम है तो एक्टिवेशन एनर्जी का कमी पड़ रहा है उसको। The second factor which affect the enzymatic activity is pH। pH अभी आप नहीं समझोगे, समझते हो pH क्या होता है? pH एक स्केल है, लॉगरिथमिक स्केल है, जो
उसके नेचर को डिफाइन करता है, वेदर इट इज एसिडिक और बेसिक। क्या होता है एसिडिक बेसिक? ठीक है, लेकिन हम एसिडिक कहते हैं तो इसका क्या मतलब होता है? एसिडिक है, क्या हो रहा है वहाँ? इट कैन इट कैन डोनेट प्रोटोन। एसिडिक है, कोई सॉल्यूशन एसिडिक है, दैट मीन्स इसमें बहुत सारे फ्री प्रोटॉन्स हैं। तो कोई सॉल्यूशन बेसिक है, दैट मीन्स बहुत सारे हाइड्रोक्सिल आयंस हैं, हाइड्रोक्सी आयंस हैं बेसिक। तो पीएच का भी फर्क पड़ता है एंजाइमेटिक एक्टिविटी का। सो देयर विल बी एन ऑप्टिमल पीएच आल्सो। ऑप्टिमल pH, okay, less than that and more than that pH, enzyme will not function at its best. किसी भी एंजाइम का, बायोलॉजिकल एंजाइम है ना, तो हमारे बॉडी का जो पीएच है वही ऑप्टिमल पीएच है। हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वही ऑप्टिमल टेम्परेचर है हमारे बॉडी में एंजाइम के काम करने, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो हमारे बॉडी का फिजियोलॉजिकल पीएच है वह उस एंजाइम के काम करने का पीएच है। बट हमारे बॉडी में जो पीएच है वो भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न। जैसे स्टमक का पीएच 1.8 है, ब्लड में पीएच 6.8 है, 6.7 6.8, स्लाइटली एसिडिक ब्लड में। ओके, स्टमक में 1.8 है, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में स्लाइटली अल्कलाइन 7.4 या 8 के लगभग है। यूरिन का पीएच अलग है, बाइल जूस का पीएच अलग है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का भी पीएच वो लगभग इतना ही है। ओके, तो डिफरेंट, इवन सेल के अंदर भी, तो सेल के बाहर हो गया, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है। स्टमक क्या है? सेल के बाहर है, हमारे बॉडी के बेसिकली वो बाहर है स्टमक, तो ट्यूब विद इन ट्यूब है हम लोग। तो दिख रहा है, भले लग रहा है अंदर है, लेकिन वो है तो बॉडी, बॉडी वाल में तो है नहीं, सेल में। सेल के अंदर भी, इंट्रा सेलुलर भी, लाइसोसोम नाम सुनी है, सुसाइडल बैग भी कहते हैं इसको, लाइसोसोम, इसका पीएच भी 1.8 होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स, यहाँ प्रोटॉन का पूल है, यहाँ भी पीएच कम है। साइटोप्लाज्म का पीएच अराउंड, डिपेंड करेगा, तो ऐसा ऊपर नीचे होता है, लेकिन 7 के अराउंड है। लेकिन लाइसोसोम का अलग है उसी में, और माइटोकॉन्ड्रिया में फिर अलग है पीएच। फिर न्यूक्लियस में भी पीएच थोड़ा अलग रहता है, स्लाइटली डिफरेंट। तो समझे बात को? टेम्परेचर तो पूरा एक जैसा है बॉडी पर, सिर्फ बॉडी पार्ट का इसमें एक्सेप्शंस, मेल्स के केस में मेल बॉडी का एक पार्ट होता है, वहां पर टेम्परेचर डिफरेंट है, बाकी बॉडी में टेम्परेचर सेम। फीमेल्स का पूरे बॉडी का टेम्परेचर सेम और लेस। पीएच डिफरेंट है बॉडी के डिफरेंट हिस्सों में, इवन सेल के अंदर भी डिफरेंट है। तो उस एनवायरमेंट में काम करने वाले जो एंजाइम्स है, जैसे हमारा प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, उनका कम पीएच होता है, ऑप्टिमल पीएच। सपोज उनका ऑप्टिमल पीएच 4 है, 3 है। जो सुसाइडल बैग लाइसोजाइम के लाइसोसोम के अंदर जो फ्लूइड है, उसमें प्रोटीएजेज है, प्रोटीन डाइजेशन करने वाले एंजाइम, प्रोटीन को ही काटने वाले एंजाइम, वो भी प्रोटीन ही है। एंजाइम भी प्रोटीन है। कुछ एंजाइम ऐसा भी है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सकता है, पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करता है, तो वो एसिडिक पीएच पर बेस्ट फंक्शन करने वाले हैं।
पैंक्रियाटिक जूस में जो एंजाइम्स हैं वो एल्कलाइन पीएच पर बेस्ट फंक्शन करने वाले हैं, उनका ऑप्टिमल पीएच वैसा है, तो अलग अलग है। आप ये समझिए क्योंकि हर एंजाइम का अपना ऑप्टिमल पीएच है, ऑप्टिमल टेम्परेचर है, समझी। जैसे कल हम बताए थे एक थर्मस एक्वेटिकस, आपके बुक में भी दिया है थर्मस एक्वेटिकस। क्या है ये? एक तरह का बैक्टीरिया है जो कहाँ पाया जाता है? थर्मोफिलिक वेंट्स में। थर्मो मीन्स हीट, फिलिक मीन्स लाइक, लाइकिंग यानी हीट लाइकिंग एनवायरमेंट में। वेंट्स मतलब वो सुराख जिससे पानी निकल रहा है, इस थर्मोफिलिक वेंट में रहते हैं ये थर्मस एक्वेटिकस नाम के बैक्टीरिया। तो इनके एंजाइम्स जो है हाई टेम्परेचर पर वर्क करते हैं, उनका ऑप्टिमल पीएच हाई है। इसी से डीएनए पॉलीमरेज आइसोलेट किया गया और उसका नाम हो गया, यहां से टी उठाया यहां से ए, टैक पॉलीमरेज। तो यह एंजाइम जो है टैक पॉलीमरेज, इसका ऑप्टिमल पीएच, ऑप्टिमल टेम्परेचर इज 72 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या है ये टैक पॉलीमरेज? डीएनए पॉलीमरेज ही है। हुँ? नाम इसका टैग पॉलीमरेज, क्योंकि ये थर्मस एक्वेटिकस से निकाला गया है। तो इसका ऑप्टिमल टेम्परेचर 72 डिग्री सेंटीग्रेड, और हमारा वाला डीएनए पॉलीमरेज उसका ऑप्टिमल टेम्परेचर 38 डिग्री सेंटीग्रेड है। काम वही हो रहा है दोनों में, पॉलीमराइजेशन, न्यूक्लियोटाइड का एडिशन, लेकिन ऑप्टिमल टेम्परेचर अलग है। तो इस प्रोटीन का स्ट्रक्चर, इस प्रोटीन का स्ट्रक्चर भले फंक्शन सेम है, अलग होगा। इसके अमाइनो एसिड का कंपोजिशन और इसका अमाइनो एसिड का कंपोजिशन भी अलग होगा। इसके अमाइनो एसिड की संख्या, इसके अमाइनो एसिड की संख्या भी अलग होगी। ओके, तो पीएच के हिसाब से भी हर एंजाइम का अपना अपना अलग अलग पीएच है। कुछ एंजाइम्स हैं जैसे पेप्टिडेज या ट्रिप्सिन, पेप्सिन, ये सब एंजाइम, इनका ऑप्टिमल पीएच जो है वह एसिडिक रेंज में है। कुछ एंजाइम्स हैं जिनका पैंक्रिएटिक अमाइलेज, डीएनएजेज, डीएनए डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम, उसको डीएनएजेज को ऐसे लिखते हैं, बड़ा डी, छोटा एन और ए और एस ई, ये हो गया डीएनए डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम। लेकिन डीएनए जब हम ऐसे लिखेंगे डी का बड़ा डी, बड़ा एन और ये, तो दिस मीन्स डीएनए मॉलिक्यूल, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोस न्यूक्लियोटाइड, ओके, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये हो गया डीएनए। यानी यहाँ पर हम डीएनए से मतलब है, लेकिन ये डीएनए, डीएनएज विल डाइजेस्ट द डीएनए, ठीक है। आरएनएज, डीएनएज फिर दो तरह के होते हैं, एक्सोन्यूक्लिएज और एंडोन्यूक्लिएज। एक्सोन्यूक्लिएज होते हैं वैसे डीएनएज, डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम, सपोज दिस इज द डीएनए मॉलिक्यूल, इफ इट स्टार्ट्स डाइजेस्टिंग द डीएनए फ्रॉम द एंड्स, यहाँ एंड से ये डाइजेस्ट करने लगे डीएनए को, दिस एंजाइम एक्सोन्यूक्लिएज, दोनों एंड से,
दोनों एंड से न्यूक्लियोटाइड्स को ये वन बाय वन रिमूव कर सकते हैं, करते हैं एक्सोन्यूक्लियेज। ओके। और एंडोन्यूक्लियेज वह बीच में से कट कर देते हैं डीएनए को, बीच में से कट करते करते बहुत छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बना सकते हैं। समझ गए? तो ये सब एंजाइम को अल्कलाइन ऑप्टिमल पीएच फॉल्स इन द अल्कलाइन रेंज। अब इसमें भी वेराइटी है थोड़ा। ओके। तो अभी तक आप क्या देखें? एंजाइमेटिक रिएक्शंस आर अफेक्टेड बाय टेम्परेचर एंड पीएच चेंज। दोनों में चेंज आएगा, रेट डिफर हो। कह रहा है the next para in your NCERT book is there are thousands of types of enzymes each catalyzing a unique chemical or metabolic reaction which is a multi-step process. Multi-step chemical reaction when each of the steps when each of the steps is catalyzed by the same enzyme complex or different enzymes is called a metabolic pathway. I think I have explained the metabolic pathway. A multi-step chemical reaction in which product of the first reaction is the reactant of the is the product of the first reaction is the substrate of the next reaction, catalyzed by a multi-enzyme complex or different enzymes. Metabolic pathway. A multi-step reaction process in which products of the product product or products of the first reaction are the substrates of the next reaction catalyzed by a multi-enzyme complex or different enzymes is called metabolic pathway.
एग्जाम्पल डिस्कस कर चुके हैं हम लोग कई बार. कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज into pyruvic acid is a multi-step process. Chemically, here glucose is 6 carbon compound, 12 hydrogen and 6 oxygen. This glucose is breaking down, giving rise to 2-pyruvic acid, which is a 3 carbon compound. Chemical formula is C3 H4O3. And water is also liberated. You can balance this equation. 2 molecules of pyruvate and 2 molecules of water is produced in this breakdown. So here oxidation of glucose is happening. And in this process, 10 different enzymes are involved in are involved. So at this stage, you should now understand that these metabolic pathways are producing varieties of biomolecules. There are so many intermediate metabolites, and there are varieties of products also, that those are also metabolites. Varieties of substrate also, initial substrate, those are also metabolites. So varieties of metabolites are produced, involved, consumed, formed, or formed here. Okay. So next, I think we will see. The next topic is how do enzymes bring about such high rates of chemical reaction? Okay. So I think I have explained this. इसको हम बता दिए हैं. ग्राफ है आगे ना, देखो. फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी भी बता दिए हैं. टेम्परेचर एंड पीएच, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट. हाँ, चलो क्विकली इसको, कितना टाइम हुआ है? ठीक है, इस टॉपिक को पढ़ लो क्विकली. पढ़ते जाओ, तुम पढ़ो जोर से.
ठीक है, ये समझ गई पूरा बात, कोई दिक्कत नहीं, समझा चुके हैं ये सब कई बार। ठीक है? जो केमिकल कंपाउंड कन्वर्ट हो रहा है उसे सबस्ट्रेट कहते हैं, जो नया बन रहा है उसे प्रोडक्ट कहते हैं, जो कैटालाइज कर रहा है उसे सब प्रोडक्ट कहते हैं, जो कैटालाइज कर रहा है वो एंजाइम कहलाता है। आगे पढ़िए। Bind. Substrate has to bind the enzyme towards the active site. ओके, तो कहीं समझने में दिक्कत हुआ ये पूछ लो, ये हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, है ना। एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट में, हाँ एंजाइम में एक्टिव साइट है, फोटोविकल बनाए थे, क्लेफ्ट है, प्रोडक्ट बाइंड हो गया, इसमें फिट हो गया, हाँ ES बन गया, यानी एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट इज इक्वल टू ES, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और फिर इट गिव्स राइज टू एंजाइम प्लस प्रोडक्ट। Same enzyme before the reaction, the amount of enzyme before the reaction and the amount of enzyme after the reaction is same. Yes, E plus S, yes, it is broken down to E plus P. तो ये आपका हो गया। इसमें आप सबस्ट्रेट जब एंजाइम के साथ बाइंड किए हुए था तो सबस्ट्रेट हैज रीच्ड इट्स ट्रांजिशन स्टेट, जहां पर नया बॉन्ड बन रहा था, पुराना वाला टूट रहा था, कुछ बना था, कुछ फॉर्म हो रहा था, उस स्टेट में है अभी, निर्माण की अवस्था में। चलिए आगे बढ़ेंगे। ओ, देखिए एक कंसेप्ट को समझो, एनर्जी स्टेट एंड स्टेबिलिटी। इन दोनों के बीच में क्या परस्पर संबंध। अगर हम बोल रहे हैं एक कंपाउंड दिए, इसका एनर्जी स्टेट हाई है अगर, तो देन स्टेबिलिटी विल बी लो, दैट कंपाउंड विल बी अनस्टेबल, एनर्जी स्टेट हाई होने की वजह से। एनर्जी, इसमें एनर्जी ज्यादा होगी, वह उसके अंदर टेंडेंसी होगी कि एनर्जी को लूज करे, जितनी ज्यादा एनर्जी होगी जिस कंपाउंड में उतना ज्यादा टेंड करेगा कि एनर्जी लूज। ठीक है, पेट्रोल किरोसिन उसमें बहुत एनर्जी है, इसीलिए वो बहुत जलता है। तो जितना ज्यादा जिस कंपाउंड में एनर्जी कंटेंट होगा उतना ज्यादा वो टेंड करेगा एनर्जी लूज करके अनस्टेबल। तो ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी स्टेट हाई है, दैट वन इज हाईली अनस्टेबल, वो एनर्जी लूज करके फिर स्टेबल। अब एनर्जी स्टेट अगर कम है तो स्टेबिलिटी हाई हो जाएगी। तो किसी एक
ये एंजाइमेटिक रिएक्शन के बनने में जरूरी नहीं है कि कोई एक ही इंटरमीडिएट स्टेज है। जो हम कह रहे हैं, सपोज दिस इज ये सबस्ट्रेट प्लस एंजाइम, इसमें एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना और इस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने के बाद इस सबस्ट्रेट में के स्ट्रक्चर में चेंज आया, फिर थोड़ी देर के बाद कुछ और चेंज आएगा सबस्ट्रेट में, while it is still bound to enzyme। कई सारे परिवर्तन आएंगे सबस्ट्रेट में और फाइनली वो प्रोडक्ट में बन जाएगा। कहने का मतलब हुआ ये सारे जो स्टेजेज हैं, दीज आर कॉल्ड एज ट्रांजिशन स्टेट्स या इंटरमीडिएट स्टेजेस ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन। तुम वो चैनल जिस पर अपलोड करते हैं सब्सक्राइब की हो, ये सारा वीडियो अपलोड होता है, पता है? तो इन सारे स्टेजेस का एनर्जी स्टेट, एनर्जी हाई होगा सबका, और प्रोडक्ट का एनर्जी स्टेट लो है, इसके कंपैरिजन में बहुत कम है। और सबस्ट्रेट का एनर्जी स्टेट इन एनर्जी स्टेट्स की तुलना में थोड़ा सा कम है या बराबर है, मोर और लेस इक्वल है मान लो, क्योंकि एंजाइम है एक्टिवेशन एनर्जी को बहुत कम कर दिया था ना। क्लियर है? सब समझा दिए हैं? ठीक है, अब आना मंडे। ओके।